Good evening. Hello. Let me check if you all are able to hear me. Hey guys, is the audio okay? Alright, this is our second lecture in geometry. Second lecture on geometry. We've already got ourselves introduced. We are done with lines and angles. I hope you attended that session. Today what we are going to deal with are triangles. Yeah. This is a 2-hour session, 3 p.m. till 5 p.m. where we'll be covering majority of triangles. Yeah. Hi Milan. नहीं मिलन, मैंने बताया तो था कि मैं आज से ले रहा हूँ. From 5th I'll be taking 3 p.m. बोला तो था. Hi Shreya, good evening. आज से रोज होगा, आज से रोज 3 p.m. to 5 p.m. we'll be doing geometry. Okay, I'll do one thing. I'll share with you the weekly plan. I'll help you understand what I have planned and all that. Okay. Hi Shreyashi. Okay, my name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer with over 6 years of experience. Please do not forget to follow #CAT Live Daily the next time you're on Instagram. And these are the 2 Telegram groups that you need to be a part of to keep yourselves updated with everything that we have planned for your MBA prep. These are our toppers from the last year's CAT 2020. If you're planning on taking the iconic CAT 2021 iconic subscription for CAT 2021, you can go for it. When you'll have a personal mentor who will help you every step of the way. There'll be test analysis and reports, personalized ones of course. There'll be standalone OMET preparation, and every other benefit of Plus will be included, including Ask a Doubt feature. So if you want to take the iconic, then you can get the subscription. These are all our upcoming batches. This one starting tomorrow 6th March is a complete weekend batch taken by these educators. 8th March is for Perfect Score 2.0. This is the 2.0 part of the Perfect Score batch. If you are somebody who is looking for the perfect score, top B schools, IIMs, B, A, C, if this is what you're planning, then you could become a part of this batch. And there's also an exclusive weekday evening batch going on that starts on the 8th of March with these educators. Yeah. So to become a part of this, take the subscription, use my referral code Surana Live, get your 10% discount. You can also go for the iconic. This is the price for it. Again, don't forget to use referral code Surana Live for your discount. Shall we begin now? Yes. I'd want you all to hit like on this video. Let me know that you are ready, and we'll start with triangles. Shivangi, nahi. Algebra will be doing 8 to 9. Algebra will be doing 8 p.m. to 9 p.m. Geometry 3 p.m. This is the plan. Okay. Hi Tawfiq. Tawfiq, I am not really sure of it, if somebody has been to it or not, but I don't see a reason why not. Yes, as long as it's an acceptable degree, then why not? Hi Manish. Chalo, let's begin with triangles, right? So the standard property of a triangle is what? That it's got 3 points. We call them vertices. So there are 3 vertices, 3 sides, and 3 angles to it, right? The first property is sum of any 2 sides must always be greater than the third side, right? So of the 3 sides of a triangle, let's say if we have
this to be 3, this to be 1, and this to be 2. Yes, this will never form a triangle. This particular thing that you see here will never form a triangle. Why? Because here sum of two sides, say 1 plus 2, should be greater than 3, but in this case, is 3 greater than 3? No. Yeah, so if this property doesn't satisfy, then it will never form a triangle. It will be a little shorter than a triangle, right? The two sides will not join. ठीक है, मनीष, डेफिनेटली मैं आपको मेरा वीकली प्लान शेयर कर दूंगा आज. आई शेयर माय वीकली प्लान, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको भी. यू वुड ऑल्सो बी एबल टू मैनेज बिटवीन अदर क्लासेस. सो फर्स्ट रूल इज व्हाट? सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सेकेंड रूल, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड. Right? Difference of any two sides must always be less than the third side. Even by that property, this doesn't make a triangle. Why? Because 3 minus 1 must be less than 2. 3 minus 1 must be less than 2. But is 2 less than 2? No, it isn't. Yes. So this is your second property. Difference of any two sides must always be less than the third side. तो क्या है? if we want to write it in terms of expressions, then if we have a triangle with sides a, b, c, if we have a triangle with sides a, b and c, yes, then what's true? According to this rule, c must always be greater than, sorry, a plus b must always be greater than c. Yes, and here a minus b must always be less than c. Got it? Yes, so these two are the rules with respect to your sides. Now sum of all the angles is 180 degrees. That's something that we know. Yes, three angles of a triangle must always add up to 180 degrees. Yes, irrespective of any kind of triangle it is, if it is a triangle, the angles will always add up to 180 only. Yes, sum of exterior angles must always be 360. Now what do you mean by an exterior angle? If this is the triangle, अगर ये triangle है, yes, then this angle, this angle, this angle, the angles that I am going to mark in blue, this and this, yes, let's call them alpha dash, beta dash, gamma dash. So alpha dash, gamma dash and beta dash must always add up to how much? 360 degrees. Getting it? This particular rule applies not just for triangle. ये सिर्फ triangle के लिए नहीं है, कोई भी polygon के लिए. If you take any polygon, exterior angles will always add up to 360 degrees. ठीक है? समझ में आ रहा है ये? Yes. So sum of exterior angles will always be equal to 360. That means according to this, alpha dash plus beta dash plus gamma dash must be equal to 360 degrees. ठीक है? And last one, again something that's important. Exterior angle is equal to the sum of the opposite interior angles. तो ये alpha 1 है. let's call this alpha, ये बीटा एंड ये गामा. यस, ये तो पता है कि अल्फा प्लस अल्फा 1, देखो ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस अल्फा 1 will be equal to beta plus beta dash will be equal to gamma plus gamma dash. Why? Because these are all straight angles. Yes, all of this will be equal to 180. ये तो पता है ना आप लोगों को? हाँ guys, you know this right? Yes, no, कोई बोलो. ये तो पता है ना आप लोगों को? तब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अल्फा 1, राइट, अल्फा 1 या अल्फा डैश प्लस उसके जो ऑपोजिट के इंटीरियर एंगल्स है. अल्फा डैश बाहर का एंगल है, इंटीरियर एंगल्स क्या है उसके ऑपोजिट में? अल्फा डैश के ऑपोजिट में क्या है? बीटा और गामा. तो अल्फा डैश प्लस बीटा प्लस गामा. यस,
सॉरी, अल्फा डैश विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा। समझ रहे हो, अल्फा डैश विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा। क्यों? क्योंकि देखो अल्फा डैश क्या है, अल्फा डैश इज बेसिकली इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, करेक्ट। ये पूरा 180 है, उसमें से अल्फा निकल गया तो अल्फा डैश 180 माइनस अल्फा। एंड हाउ अबाउट बीटा प्लस गामा? आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 180, यस, और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस अल्फा। तो ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, this is also equal to 180 minus alpha. Ultimately equating both of these, what will you get? Alpha dash is equal to beta plus gamma, है ना। Same way can you do the same thing for beta? Beta dash will be equal to what? जल्दी से बताओ। Beta dash will be equal to, जल्दी से बोलो guys, beta dash क्या हो जाएगा? Quickly tell me what will beta dash be equal to? Right, 180 minus beta. Shreya, very good. Shreya says alpha plus gamma, very good. So what is this? Beta dash is equal to 180 minus beta, which is basically equal to alpha plus gamma. Yes. सेम वे गामा डैश का क्या हो जाएगा? गामा डैश विल बी 180 माइनस गामा, विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। समझ गए? तो अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कूल ना? So these 5 are important rules, these properties, rules नहीं है, but ये properties of a triangle. Only if these properties are true will the given shape be a triangle. ठीक है? इसमें कोई doubt किसी को? These 5 rules. So a plus b must be greater than c, a minus b must be less than c, alpha plus beta plus gamma should be equal to 180. Alpha dash plus beta dash plus gamma dash will be equal to 360, and exterior angle should be equal to the sum of opposite interior angles. Cool है? एक बार सब yes बोल लो, सब yes बोलो. We'll move on to the next part now. चलो, beautiful. Now quickly try this out. Here आपका figure, here's the figure. Which of the following is a possible length of AC? Possible, huh? Quickly try. Shreya says B, 4 1/3 is possible. Others? Very good, superb. Sumit, Bhavna, Milan, very good. Very good, Pankaj. Superb, Shreyasi. Option B is your right answer. 4 1/3 is right. Yeah. How do you check it? Get the range. Yes. Let's call this side as A. इसको A बुलाते हैं. What do we know? We know that A has to be less than 4 plus 6. है ना? A has to be less than. Sum of two sides must be greater than the third side. Yes. तो A must be less than 10, one part. तो इसमें क्या 10.1 को निकाल सकते हैं अपन. Yes. Next, what are they saying? That the difference से ज़्यादा होना चाहिए, right? That is 6 minus 4 should be less than A. है ना? 6 minus 4 should be less than A, or 2 should be less than A, और A should be greater than 2. So technically अपने A जो AC है उसका क्या है?
a should be greater than 2 but less than 10. This is the range, है ना. इस रेंज में अगर कोई भी साइड हो तो इट विल सेटिस्फाई एज अ ट्रायंगल, राइट. तो 2 नहीं हो सकता, 1.99 नहीं हो सकता. अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट, 4 1/3. यस, सिंस दे आर आस्किंग पॉसिबल लेंथ, वो कोई कुछ भी साइड हो सकता है. ठीक है, ब्यूटिफुल. चलो ट्राई दिस आउट. मनीष सी नहीं, बी इज द आंसर. पहले वाले का बी करेक्ट है. 4 1/3, क्योंकि अगर 2 हुआ तो 6 - 4, 2 शुड बी लेस देन द थर्ड साइड. तो 2 इज नॉट लेस देन 2 ना, तो वो नहीं लगेगा. जल्दी से ये वाला ट्राई करो. How many triangles can be formed using 3 sticks out of 4 sticks of length 26 meters, 14 meters, 12 meters, 10 meters? Bhavna and Milan say A, only 1. Okay. Sumit says C, 3. Okay. Others? So for a question like this, अगर साइड नहीं देते, साइड्स नहीं देते, तो आउट ऑफ 4 स्टिक्स टू सेलेक्ट 3 स्टिक्स फॉर अ ट्रायंगल, 4C3, 4 ट्रायंगल्स बन जाते हैं ना, 4 ट्रायंगल बन जाते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस दिया है, साइड्स दिया है, एंड वी हैव टू एंश्योर दैट व्हाट, C हैज टू बी लेस देन A plus B एंड C हैज टू बी ग्रेटर देन A minus B, है ना. ये कंडीशन को ध्यान में रखना है. यस, सो गो फॉर रैंडम सिलेक्शंस, यू विल अंडरस्टैंड, है ना. आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये 26 है, 26. सो लेट्स नेम इट, लेट्स नेम कर देते हैं इसको x, WXYZ. ठीक है, WXYZ. यस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विल WXY फॉर्म अ ट्रायंगल? नो. व्हाई? Because 26 should be less than 14 plus 12. Does it satisfy? No. तो WXY तो गया, right? How about X, Y and Z? या सबसे बड़े वाले को पहले निकाल लो, W को पहले निकाल लेते हैं, right? 26 W, Y and Z. क्या ये ट्रायंगल बनेगा? W क्या है? 26 should be less than 10 plus 12. Still satisfy? No. Yes. फिर 26, 14 and 10, WXZ, ये भी नहीं बनेगा. 26 has to be less than 14 plus 10, ये भी नहीं बनेगा. तो ultimately which one will form a triangle? अपन ने क्या देखा था? 4C3, that is 4 triangles are possible. WXY नहीं है, WYZ नहीं है, WXZ नहीं है. Ultimately what is left? XYZ, right? XYZ will form a triangle. कैसे? Because 14 is less than 12 plus 10. Satisfied? Yes. And you can also check for the difference, right? Difference भी check कर सकते हो. यहाँ पे 2 होगा difference, 2 difference 10 greater है, 2 difference 14 greater है, 4 difference 12 greater, right? तो only one triangle can be formed. Got it? तो जिन्होंने भी 3 बोला, you understood, right? सुमित समझ गया ना क्यों 3 नहीं बन सकते? These 3 will never become a triangle. Only triangle possible is WXYZ. Done? चलो
Now let's move on to classification. Yes, on the basis of sides, on the basis of angles, we will be classifying the triangles, right? ये सब आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में. तो first on basis of side we have equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle, right? These three on the basis of sides. Yes, and then we have acute triangles, right angle triangles and obtuse triangle. These are based on the angles. Yes, based on sides, based on angles. So there are 6 types of triangles basically, right? Equilateral, isosceles, scalene based on the sides, acute, right angled and obtuse based on the angles. Yeah, let's talk about them in detail now. Let's talk about equilateral. Yes, equilateral triangle के properties क्या होंगे? An equilateral triangle will have all 3 sides equal. Yes, 3 sides equal, है ना? Now since 3 sides are equal, उनके opposite angles भी equal हो जाएंगे. मतलब this and this angle will also become equal, है कि नहीं? Alpha, beta, gamma will be equal. Alpha, beta, gamma will be equal. If they are equal, then 180 degrees, which is total, will be divided equally among 3 angles, which will give us what? 60 degrees. So each of these angles will be 60 degrees. Yes, correct. Now apart from that, what else? An equilateral triangle is also an acute triangle. An equilateral triangle is also an acute triangle because all the angles are less than 90, है ना? All the angles, all 3 angles are less than 90, so it will be an acute triangle also. Yes, other properties include talking about their median, yes, their perpendicular bisector and all that. तो उसके बारे में अपन we will talk in a while. Yes, we'll talk about these in a while. ठीक है? तो these standard properties, all 3 sides equal, all 3 angles equal to 60. ये तो पता है सबको? Yes. Okay. Let's talk about an isosceles triangle. What happens in an isosceles triangle? 2 of the sides will be equal. Yes, the third side will either be longer or shorter. So A, and this will be some other side, B. Hi Rohant, thank you so much buddy. Hi SK, how are you doing? Milan, both are easy. Both are easy. Algebra is easy, geometry is easy, definitely easier than arithmetic. Getting it? Geometry, algebra are definitely easier than arithmetic. Okay. Yeah, so in an isosceles triangle, 2 sides will be equal, third side will be distinct. Yes, that is what? A and A are equal, not to B though. Yes, same way the angles, let's say A के opposite का alpha, ये A के opposite का भी alpha, B के opposite का beta. Yes, so 2 angles will also be equal, third will be distinct, third angle will be different. Yes, so what is it? Alpha and alpha will be equal but not to beta. Getting it? Definitely Milan, 10 questions minimum. Yeah, definitely. That's the beauty of these topics. These are all basic concepts, something that you can easily understand.
Unlike arithmetic where the question itself is too complex, यहाँ पे question ज़्यादा complex नहीं रहता. Okay. Now one of the most famous types of isosceles triangles, most famous isosceles triangle is your right angle triangle where two sides are 45. Yes, this is called the 45 45 90 triangle, है ना. 45 45 90 famous type. So here we can talk about the Pythagoras theorem. We'll talk about that in detail. But if I tell you that this side is A and this side is A, then this side will be what? Root 2A. Getting it? A and root 2A. Yes, this is a special triangle. This is called a special triangle. Very important for questions in tests like CAT. ये बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपन. ठीक है? ओके. Next, a scalene triangle is something that has all three sides different. Yes, all three sides will be different. A, B, C. Three distinct sides. That is A not equal to B not equal to C. Same way, three different angles also. है ना? Three distinct angles. None of the angles will be equal. Got it? Cool. That's a scalene triangle. Scalene is one of the most famous scalene triangles is the 30 60 90 triangle. This is also a special triangle. This is also a special triangle, 30 60 90. Yes, but we'll talk about these when we talk about right angles. ठीक है? This and 45 45 90 detail में बात करेंगे. So these were with respect to sides: equilateral, isosceles and scalene. Okay, now let's go to triangles with respect to their angles. Yes, an acute triangle is a triangle where all angles are less than 90. Yes, all angles are less than 90. Acute angle is an angle less than 90, but an acute triangle is where all the angles are less than 90, right? So if I take an equilateral triangle, 60 60 and 60, तीनों क्या है? 90 से कम है, right? All three angles are less than 90. So if all angles of a triangle are less than 90, then that's an acute triangle. So alpha, beta, gamma should be less than 90. Yes. Then right angle triangle, most famous ones, especially for tests like CAT. A lot of things will be related to right angle triangles here, है ना? So for a right angle triangle, one of the sides is called base, the other is called the height or altitude. Let's use height itself. Altitude becomes too technical. Height. एक बेस होता है, दूसरा हाइट होता है. इसको we call them legs of the triangle, right? But this particular side, this is called what? The hypotenuse. Yes, hypotenuse. So how is a triangle a right angle triangle? If one angle is equal to 90. If one angle is 90, then automatically what happens? The other two angles become less than 90, right? Other two become acute, less than 90, है ना? एक अगर 90 हो गया, 180 में से अगर एक 90 हो गया,
तो बाकी 180 का 90 गया, बाकी 90 होना चाहिए, है ना. So the other two will be less than 90. That's it. Okay. A few rules with respect to your right angle triangle. First, hypotenuse must be the greatest or the largest side, longest side. Yes, it must be the longest side, but also keeping in mind that hypotenuse is a side of a triangle, it will always be less than the sum of base and height, है ना. hypotenuse will always be less than the sum of base and height. ये ध्यान में रखना है आपको, राइट. भले ही राइट एंगल ट्राइंगल हो, but it's still a triangle. मतलब any side cannot be greater than the sum of both sides. Yes, also what, that your hypotenuse must be greater than the difference between base and height. ठीक है. Yes, that is right angle triangle. We'll talk about Pythagoras theorem in a while. And what is an obtuse triangle? So if you have a triangle like this, by the looks itself you know that this triangle, one of the angles, this angle is greater than 90, right? So only one angle can be greater than 90. One angle greater than 90. Yes, other two by default will be less than what? 90. The sum of them will also be less than 90, right? Sum of other two angles is less than 90. Getting it? Not just the angles, but the sum will also be acute. समझ में आ रहा है? जैसे अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो यू नो अल्फा इज ग्रेटर देन 90, तो बीटा प्लस गामा शुड बी लेस देन 90. ठीक है ना? हे हाय अरित्रा, लॉन्ग टाइम बड़ी, कैसे हो? ठीक है. Obtuse triangles are one of the least tested, right? Not very high frequency, इनकी थोड़ी low होती है. Very highly tested triangles are one, right angle triangles. Yes. Then comes your isosceles. Isosceles में भी isosceles right triangles also, right? Isosceles triangles and दोनों का combination भी isosceles right triangles, right? And then you have your equilateral triangles. ये सबसे ज़्यादा tested है. ठीक है? डन है, इसमें कोई डाउट्स नहीं ना? क्लासिफिकेशन डन है गाइस? एक बार यस बोलो. सबका क्लासिफिकेशन beautiful. Now let's go to area of a triangle. Yes, area of a triangle, standard formula for the area of a triangle. First things first, for you to understand the area of a triangle, actually area of most shapes, है ना? area of most shapes, है ना? कोई भी shape ले लो, will be equal to what? Base times the height, correct? Let's say if you take a square, sorry, take a square or a rectangle or whatever. If this is your length, this is your breadth, what do you do? Length into breadth, correct? That's base and the perpendicular distance from it. Yeah, but here in triangle what happens? The area is what? Half times the base times height. Yes, half times base times height. Getting it? Height is what? Perpendicular
distance from base. Yes, you can't take any side and call it height, है ना. जैसे कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और none of them are 90 and none of them are 90, right? फिर यहाँ पे अगर इसको बेस ले रहे हो तो हाइट क्या होगा. अगर आप इसको बेस ले रहे हो, दिस इज बेस, देन हाइट इज व्हाट, यहां से ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट, ये h है. गेटिंग इट. अगर हम इसको बेस लेंगे सेम ट्रायंगल में अगर मैं इसको बेस लूंगा तो मेरा हाइट कहां से आएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा हाइट. यस, वही अगर तीसरे साइड से लूंगा, इसको अगर मैं बेस लूंगा तो मेरा हाइट कहां से आएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से. इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से जो 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, दैट लेंथ इज हाइट. ठीक है. अरे शुभम, मैंने ग्रुप में डाला तो था अभी आने के पहले, बट अच्छा ठीक है, आने के 1-2 मिनट पहले ही डाला था. बट या आई अंडरस्टैंड, सॉरी. अभी ऐसे चोरी छुपे नहीं लेंगे क्लास, ठीक है. अभी चोरी छुपे नहीं लेंगे क्लास. डन. सो दिस base into height concept works extremely well for right angle triangles. Yes, but for other triangles it becomes a little difficult to get height. Base तो पता होता ही है, but height बहुत बार नहीं मिलता है, right? For example, if we have an equilateral triangle, अगर अपने पास कोई equilateral triangle है, yes, यहाँ पे base तो हम इसको ले लेंगे, ये हो गया base, right? What will you consider height as? दिस है ना, दिस इज योर हाइट, दिस इज 90. तो यहां पे क्या लगता है, यहां पे यू विल यूज योर स्पेशल ट्रायंगल. अरित्रा, हाँ भाई, एवरी डे 3 PM to 5 PM ज्योमेट्री, 8 PM to 9 PM एल्जेब्रा. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पता है ये 60 है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, 30, राइट. सो दिस इज अ स्पेशल 30, 60, 90 स्पेशल ट्रायंगल. 30, 60, 90 स्पेशल ट्रायंगल. यस. इस पे क्या होता है, या 30, 60, 90 उनके ऑपोजिट साइड्स, राइट. 90 के ऑपोजिट अपने को पता है कि अगर हम इसको A ले रहे हैं, लेट्स से इसको A ले रहे हैं, ये पूरा A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, है ना. तो 90 के ऑपोजिट क्या, A. यस, 90 के जो ऑपोजिट होता है वो हो गया A. बेसिकली वी टेक इट एज 2A ले लो, इजी रहेगा फिर. इफ दिस इज 2A, दिस एंटायर थिंग इज 2A, ये भी 2A, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, दैट आल्सो एक्ट्स एज अ बाइसेक्टर, मतलब ये A और ये A हो जाता है ना. तो 30 के सामने वाला A, 90 के सामने वाला 2 times A और 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, √3A. समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे पिथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा, यू विल गेट, यू वांट 60 के ऑपोजिट वाला, है ना, यू वांट 60 के ऑपोजिट वाला, मतलब जो भी हाइट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4A square minus A square. So height square is 3A square. Height is equal to √3A. समझ में आ रहा? Yes, तो 60 के ऑपोजिट वाला, ये 60 के ऑपोजिट वाला ये क्या हो गया, √3A. Getting this? This is called a special 30, 60, 90 triangle. ये special triangle है. Yes. वेरी बेनिफिशियल स्पेशली इन दीज सिचुएशंस. आपको देखो पूरा ये लगाने की जरूरत नहीं है, पिथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, फट से मिल जाता है इसका. यस, ये बहुत बार दीज स्पेशल ट्रायंगल्स इन अ लॉट ऑफ केसेस विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री.
Yes, trigonometry, अगर if you are not strong with trigonometry, then this is an alternative. This is better than knowing trigonometry. ठीक है? हाँ श्रेया, that's basically what I've also used. If you notice, that's basically what I've also used. Yes. ठीक है? So in an equilateral triangle, the area becomes what? Half times base a है. अगर base a है तो height क्या हो जाएगा? √3/2a, है ना? Look at this. Equilateral triangle में देखो, area of any triangle is what? Half times base times height, है ना? यहाँ पे अपन ने 2a लिया है, तो अगर मैं इसको a लूंगा, if this is a, all the sides are a, तो ये क्या हो गया? a/2, है ना? तो what do you get? a/2 √3/2a and a, बस dividing by 2 basically. Yes, तो what do you get? half times base क्या है? a, height क्या मिला? √3/2a. If you multiply this, what do you get? You get √3/4a². ठीक है, ये हो गया आपका राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल का. तो यू डोंट हैव टू रट्टोफाई दिस, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. इफ यू अंडरस्टैंड इट, इट्स वे मोर देन इनफ, है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल का आ गया समझ में? अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वंस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. If your isosceles triangle, अच्छा एक सेकेंड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का अभी अपन बताएं, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल का देख लो. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल the area of it will be equal to b/2 whole root a² minus b²/4. yes, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर ये आप लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा काम बच जाएगा, राइट? यू विल सेव अप अ लॉट ऑफ वर्क. गेटिंग इट? यस. सो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो. यूज ट्रिग्नोमेट्री, यूज साइन एंड कॉस, या अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में कोई टेंशन नहीं है. अगर ये 90 है और ये दोनों 45 है ना? ये अगर 90 है और ये दोनों 45 है, और मैं अगर बोलूं कि दिस साइड इज a, दिस साइड इज a, ये क्या हो जाएगा? 2a² the whole root, that is √2a, है ना? तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है. एरिया ऑफ अ 45-45-90 ट्रायंगल इज व्हाट? इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, विच इज बेस भी a है, हाइट भी a है, a²/2. समझ रहे हो? ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया. आ रहा है गाइस समझ में? अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल में या तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, यस, अदरवाइज यू गोना हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है? इसमें b/2 a² minus b², b is the unequal side, a is the equal side, राइट? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और मैं बोलूं कि ये दोनों इक्वल है, a एंड a आर इक्वल, दिस इज b, है ना? दोनों इक्वल है, ये अलग है, तो दिस इज योर फॉर्मूला. ठीक है? डन, नो इश्यूज. नाउ द बेस्ट ऑफ all these formulas is your Heron's formula. Heron's formula for finding out the area of a triangle. ये आप लोगों को याद है? This you will also be using in coordinate geometry.
How many people remember the Heron's formula for area of a triangle? Anybody? Heron's formula, area of triangle. Guys, okay, the Heron's formula is this: area of a triangle is whole root of s into s minus a, s minus b, s minus c, right? इनका प्रोडक्ट s into s minus a into s minus b into s minus c का होल रूट. करेक्ट शुभम. बट व्हाट इज दिस s? ये s क्या है? s is nothing but semi perimeter. S is nothing but semi perimeter. Perimeter is the sum of all the sides. सारे साइड्स को ऐड कर दिया तो पेरीमीटर आ जाएगा, है ना? उसका हाफ कर दिया तो सेमी पेरीमीटर. Where A, B and C are the three sides. This will work for any kind of triangle. ये कोई भी ट्राइंगल में काम करेगा. This will work for an equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. Yes, this will work for right triangle, acute triangle, obtuse triangle, any kind of triangle ये काम करेगा. Heron's formula. ठीक है? This is so much useful, especially with scalene triangle. क्योंकि स्केलिन में अपने को साइड के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो स्केलिन में डेफिनेटली हेल्प करेगा. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे. क्विकली ट्राई दिस आउट. जल्दी से ये वाला ट्राई करो. Anybody answer? Shreya says A. Shreya, she says A. Manish says A. Superb. Others? So what are they saying? There is an isosceles triangle sorry, with the perimeter of 50. Let's name these sides A, B and C. ठीक है, let C be the largest side. Yes, तो C largest है. C का क्या है? 20 सेंटीमीटर. We know the perimeter A plus B plus C is how much? 50. तो A plus B कितना हो गया? 50 minus 20, 30. And A and B are equal, right? A और B equal है, तो A 15, B 15. समझ रहे हो? ये हो गया 15 मीटर्स या सेंटीमीटर जो भी है. ये 15 सेंटीमीटर. दिस वन इज 20 सेंटीमीटर.
Why are we taking this way? Because they're talking about largest side. Largest मतलब singular, है ना? अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे? Do you want to use that formula or do you want to use Heron's formula and get it over with? Yes, my suggestion will be वो formula बहुत complicate हो जाता है, तो Heron's लगा लो. Yes, Heron's formula. तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं. पेरीमीटर अपन को दे दिया है 50. सेमी पेरीमीटर इज व्हाट? 50 by 2, 25. Yes, so area is what? Under root s into s minus a into s minus b into s minus c. Yes, which is what? Root 25 into s minus a. 25 minus 15, 10 into s minus b, 10 into s minus c, 5. Yes, तो ये 5, ये 10, 50, बाकी क्या बचा? रूट 5. 50 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर becomes your area. ठीक है? Any doubts here guys? इसमें कोई डाउट किसी को? ऑप्शन ए 50 रूट 5. तो अगर आपको चाहिए you can also use that formula, right? If you want to use that formula then go ahead. क्या था formula? b by 2 whole root a square minus b square by 4, right? Yeah, so we can do, let's do it here. Area is what? b square into a square minus b square by 4, है ना? a square b by 2 है, sorry, not b square, b by 2 into, yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b is what? Your uncommon side, 20. 20 by 2 into root of a square, which is 15 square, 225 minus 20. b is what? 20. हाँ, तो 400 by 400. Yes, so what do you get? You get 10 into, this will become root 125. Yes, which is 25 into 5. तो 25 निकाल दिए, 550 रूट 5. समझ में आ रहा है? b क्या है? b in this formula, इस फॉर्मूला में b is distinct side and a equal sides. ठीक है ना? सॉरी गाइस. चलो ट्राई दिस नाउ. Vertex Study Hub says A. Others, Pankaj says B. बाकी
शुभम says B. और कोई? ठीक है, चलो लेट्स से दिस इज दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये दोनों इक्वल है, राइट. दिस एरिया ऑफ दिस एंटायर थिंग ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दे सेइंग ए डी इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू बी सी. तो अभी इन दोनों का यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ध्यान से सुनो. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, in an isosceles triangle, perpendicular line drawn from unequal या distinct vertex या drawn to distinct side will bisect the sides and the side and the angles and the angle. Yes, उसका क्या मतलब हो गया, जो AD है, yes, AD will divide BC in two equal parts. तो BD will be equal to CD. Another thing is what, it will also divide the angles. मतलब angle BAD will become equal to angle CAD. समझ रहे हो? ये isosceles triangle का प्रॉपर्टी है. Yes. इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो बेसिकली ये दोनों सेम ही ट्रायंगल हो गए, है ना. ए बी डी ट्रायंगल ए डी बी इज congruent to what, triangle ADC. yes, congruency ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी. सो अल्टीमेटली व्हाट डू यू गेट, बोथ देयर एरियाज आर इक्वल, राइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. दोनों इक्वल है. हाँ, अगर दोनों इक्वल है तो, और हमें क्या पता है, दोनों का सम 36 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 36/2, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ गए? ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, यू कैन मेक इट कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. AD दोनों में कॉमन है, AB और AC इक्वल है, BD और CD इक्वल है, SSS कॉन्ग्रुएंसी. यू कैन ऑल्सो गो बाय एंगल, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है. ऑल्सो गो फॉर RHS कॉन्ग्रुएंसी. RHS में क्या है, एक राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कॉमन साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो वो भी है, राइट. सो एनी कॉन्ग्रुएंसी यू कैन गो फॉर दिस. ठीक है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर AAA. AAA तो नहीं होता है, AAA सिमिलैरिटी होता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, तो यू कैन गो फॉर ASA. यस, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उसके एंगल्स जो ऑपोजिट में होंगे वो भी इक्वल रहेंगे. तो एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल. एंगल D दोनों साइड 90-90 है, एंड यू कैन टेक दिस साइड एज कॉमन, राइट. BD एंड CD आर इक्वल. एनी विच वेज यू विल गेट दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ में आया, लोड मत लो.
कॉन्ग्रुएंसी अगर नहीं समझ में आया लोड मत लो, बस ये जान लो कि ये दोनों इक्वल ट्रायंगल्स है, सेम ट्रायंगल्स है, ओवरलैप हो रहा है, दोनों मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है बस। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, आगे और है क्लास गाइस, डोंट लीव, 5 बजे तक है, एक और घंटा है, ठीक है। वी सून एक्सपेक्टिंग अ प्राइस हाइक इन द सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं, एक हफ्ते बाद, अगले महीने, मिडिल ऑफ द वीक, ऐसा कुछ अगर सोच रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि ये 10% का जो डिस्काउंट है दैट्स नॉट फॉर लॉन्ग, राइट। दे सून प्लानिंग ऑन रिड्यूसिंग इट टू 5%। तो बिफोर इट बिकम्स 5%, गो अहेड, यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइफ एंड गेट द सब्सक्रिप्शन सून, ठीक है। अभी ये वाला ट्राई करो। शुभम भाई, वो सारे स्कूल के ही है भाई, देख लो गाइस, ज्योमेट्री अलजेब्रा इज एंटायरली योर स्कूल सब्जेक्ट। ये स्कूल का सिलेबस है, आपके 9th 10th इवन 8th फॉर दैट मैटर, 8th 9th 10th, ये अगर आपने अच्छे से ध्यान देके पढ़ लिया हो तो ये अलजेब्रा ज्योमेट्री बिकम्स वेरी सिंपल टू क्रैक। अगर नहीं भी पढ़ा हो, चलो ठीक है, अभी पास्ट का क्या ही करें, नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो अलजेब्रा ज्योमेट्री डेफिनेटली हो जाएगा। यू विल हैव एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी जस्ट विद द बेसिक्स। भूल गए, होता है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ के भूल गए या पढ़े ही नहीं या सिलेबस में नहीं था या मैथ्स नहीं लिया था, कोई टेंशन नहीं है। एवरीथिंग कम्स टू द सेम पार्ट अगेन, राइट। लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, दैट्स इट। आई गेस दिस पार्ट, इस पार्ट का आंसर चॉइस नहीं है तो इसको जाने दो, लीव दिस। श्रेया पंकज से डी, अदर्स। एनीवन एल्स? तभी क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है, एक पार्क है जो ट्रायंगुलर है, विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव बट ठीक है। ठीक है। दिस इज 100 meters, दिस इज 100 meters, दिस इज 160 meters। ये बोल रहे हैं कोई एक साइड में गेट के लिए जगह छोड़ना है, राइट। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे गेट के लिए आप जगह छोड़ रहे हो 2 मीटर का, सिर्फ एक जगह पे, तो टोटल कितना लेंथ हो गया? लेंथ, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड्स, 100 + 100 + 160, बट क्योंकि ये 2 मीटर गैप छोड़ना है, -2, यस। 360 - 2, 358 meters पेरीमीटर।
या टोटल लेंथ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ईच मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर कॉस्ट 10 रुपीज, 1 मीटर का 10 रुपये। सो टोटल कॉस्ट will be what? 10 meters into 358. 10 rupees per meter into 358 meters, which is how much rupees? 3580. Yeah. साक्षी एल्जिब्रा, फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा, पॉलिनोमियल्स, वो सब अपन 8 o'clock करेंगे, 8 PM। ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब अपन 3 PM करेंगे, 3 बजे। ठीक है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आई शेयर विथ यू द एंटायर प्लान, पूरा प्लान शेयर कर दूंगा, एटलीस्ट 1 हफ्ते का शेयर कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, डन ना गाइस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा इसका अगर एरिया ढूंढना होगा तो हाउ मच एरिया, क्विकली टेल मी, एरिया कितना है, इसका एरिया कितना होगा, फटाफट से बताओ, व्हाट इज द एरिया? मेरे पढ़ाने से सब इजी लगता है, नहीं मनीष आप अच्छा हाँ ठीक है, वो भी है, बट मेजरली होता है आपका पढ़ने का इंटेंशन, है ना। स्कूल में जब थे तब क्यों पढ़ते थे कि भाई बस एक बार यही सेम क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, मेरे को पता है यही सेम अगर मैं आंसर कर दूं जैसे तैसे तो ठीक है, बट कैट जैसे टेस्ट में क्या होता है, इट बिकम्स सो अनप्रेडिक्टेबल कि अब आप सोचते हो कि हाँ मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ आंसर नहीं, है ना। तो दैट ऑल्सो मैटर्स। और स्कूल में कौन पढ़ता है यार, स्कूल में कौन पढ़ता है उस उम्र में पढ़ा जाता है किसी से। हाँ जी, एरिया बताओ जल्दी गाइस, एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला b/2 इंटू a² माइनस b²/4, है ना। करो ट्राई जल्दी से। करेक्ट शुभम, वो भी हमारे प्रेशर के कारण, वो भी हमारे प्रेशर के कारण पढ़े हैं, खुद के मर्जी से नहीं कि यार मैं इसको नहीं बताया तो ये पूरा टेस्ट मेरा दिमाग खाएगा। 4800 मीटर स्क्वायर, ब्यूटीफुल गाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160/2 80 इंटू रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर माइनस 160 square by 4, which is 80 square, है ना। What is 100 square minus 80 square? 60। Pythagoras, ये Pythagorean triplets है, these are called Pythagorean triplets guys, 60 80 100, because they are of the ratio 3:4:5। yes, ये Pythagorean triplets, डोंट वरी, ये सब अपन बात करेंगे, ऑल ऑफ दीज वी विल टॉक अबाउट। बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट्स हैं या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 इंटू 60 4800 मीटर स्क्वायर। डन, चलो ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स गो टू कॉन्ग्रुएंसी। अपन ने अभी देखा था ना कॉन्ग्रुएंसी। Congruency basically means if two triangles are congruent, it basically means both the triangles are same. दोनों triangles की properties जो हैं वो same हो जाएंगी।
right? Two triangles being same, basically telling that they are equal. Yes. So let's say these are the two triangles. गले का बैंड बज गया. तो these are two triangles ABC XYZ. These are the angles alpha, beta, gamma ABC के लिए, and omega, theta and lambda. ठीक है, ये याद है लैम्डा वैम्डा सब फिजिक्स में मैथ्स में है. ठीक है, these are yeah. So अब if I want to say that these two triangles are congruent, then what is the condition? First, alpha should be equal to omega. बेसिकली ये और ये ट्राइंगल सेम है बताना है, ओवरलैप करना है. ये XYZ है, ये ABC है, उनको ओवरलैप करना है ऐसे, राइट? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, गामा विल बी इक्वल टू थीटा. सारे ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. एंड AB विल बी इक्वल टू XY. AB ये वाला जो साइड है, दिस विल बी इक्वल टू XY. यस. BC will be equal to YZ and AC will become equal to XZ. ये कंडीशन नहीं है, ये केस, ये सिनेरियो है. Yes, this is what will happen. Result: if two triangles are congruent, if two triangles are congruent, then this is the result. यस, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, सिंबल देख लो कॉन्ग्रुएंट का. दिस मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसीज हैं. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज SAS, which stands for side, angle, side. yes. कॉन्ग्रुएंसी किसके लिए यूज आती है? जैसे अपन ने वो क्वेश्चन नहीं देखा था, अभी एक क्वेश्चन देखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया 36 था. यस, तो उसके 1/2 का कितना था एरिया? ऐसे में बहुत यूज आता है, राइट, टू मेक इट सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो हियर इफ आई से दैट AB इज इक्वल टू XY, yes, it should always be two sides and the angle in between them. yes, दो साइड और उनके बीच का एंगल. हाँ मनीष, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि दैट इज हाउ यू लर्न कॉन्ग्रुएंसी, है ना? ठीक है. नेक्स्ट, दीज टू एंगल्स अल्फा एंड थीटा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? एंड these two sides BC and YZ. अगर ये सेम है, देखो यहाँ पे ये एंगल कहाँ पर है, किसके बीच में है? इसके और इसके बीच में, राइट? सेम वे ये जो एंगल है वो किसके बीच में है? इसके और इसके बीच में, राइट? सो साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल, बिटवीन एंगल. यस, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बाकी सारे भी इक्वल हो जाएंगे, राइट? अगर ये हो गया तो बाकी सारे भी इक्वल हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? AC विल बिकम इक्वल टू XZ. बाकी के जो भी एंगल्स हैं, लेट्स से बीटा एंड थीटा, बीटा इज इक्वल टू, चलो थीटा यूज कर लिया, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, यस, एंड गामा इज इक्वल टू लैम्डा. सारे बाकी सारे भी इक्वल हो जाएंगे, है ना? अगर सारे इक्वल हो गए तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ. करेक्ट? क्योंकि सारे सेम हैं, एंगल, साइड सब सेम है, तो फिर एरिया भी सेम हो जाएगा. द नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ASA. मतलब एंगल, साइड एंगल. यस, पिछले वाले में क्या था? दो साइड के बीच का एंगल. इसमें क्या है? दो एंगल के बीच का साइड, बिटवीन दो एंगल के बीच का साइड.
ठीक है। अगर यहाँ पे ये एंगल्स है, लेट्स से वी आर सेइंग दैट बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा और ओमेगा इक्वल है, अल्फा और थीटा इक्वल है, एंड दीज मिडल साइड्स आर इक्वल, दोनों के बीच का, दोनों एंगल के बीच का साइड जो है वो इक्वल है दोनों केसेस में, देन वी कैन से दैट ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दिस इज योर ASA कॉन्ग्रुएंसी। यस, हाय अर्पण, गुड आफ्टरनून। आज आफ्टरनून में, हाँ भाई, 5 बजे तक है ये क्लास, 5 PM टिल 5 PM। तो अब तक अपन ने क्या देखा, SAS, ASA, नाउ लेट्स लुक एट ट्रिपल S। ट्रिपल S क्या हो जाएगा, ऑल 3 साइड्स इक्वल, साइड साइड साइड, साइड दो भाई, साइड साइड साइड, यस, मतलब क्या, AB इज इक्वल टू XY, BC इज इक्वल टू YZ एंड AC इज इक्वल टू XZ। यस, अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑल्सो बिकम इक्वल। यस, अल्फा इक्वल टू थीटा, बीटा इक्वल टू ओमेगा, गामा इज इक्वल टू लैम्डा, ये भी हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। अल्टीमेटली देयर एरिया विल ऑल्सो बिकम इक्वल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। समझ गए, बुझे, समझे कि नहीं गाइस, फटाफट बताओ। ये 3 कॉन्ग्रुएंसी डन। अब ये लास्ट कॉन्ग्रुएंसी है विच इज RHS। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रिपल A इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी। यस, ट्रिपल A क्या है, सिमिलैरिटी है। तो ये कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ट्रिपल A बैटरी है, सॉरी, बैड जोक, आई नो। ट्रिपल A इज अ सिमिलैरिटी, नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी। वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, क्योंकि दो एंगल हैविंग सेम एंगल्स, दो ट्रायंगल हैविंग सेम एंगल्स कैन ऑल्सो बी स्मॉलर एंड बिगर, है ना, उसका एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास। तो अब तक अपन ने क्या देखा, वी हैव लुक्ड एट SAS, साइड एंगल साइड, ASA, एंगल साइड एंगल, एंड ट्रिपल S, ठीक है, ये चेक है। नाउ लेट्स लुक एट RHS, राइट, RHS। RHS एक्चुअली स्टैंड्स फॉर नॉट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं है, द ट्राइंगल शुड बी राइट, राइट ट्राइंगल। H stands for hypotenuse and one side. Yes, so this is almost like SAS, very similar to SAS, ठीक है। तो अभी ये दो ट्राइंगल्स हैं, these two are your right triangles। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि दोनों राइट ट्राइंगल हैं, एंगल B एंड एंगल Y बोथ आर 90, यस, ये 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों राइट ट्राइंगल हो गए, वन पार्ट चेक। नेक्स्ट, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए एंड दोनों के बेस कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, राइट। AB XY इक्वल है, मतलब क्या, साइड इक्वल हो गया। AC एंड XZ आर व्हाट, हाइपोटेन्यूज, ये भी इक्वल होगा। अगर ये तीनों हो गए, ऑल 3 आर चेक, अल्टीमेटली दीज 2 राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। समझ रहे हो। तो राइट ट्राइंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, बस। बुझे, समझ गए क्या गाइस? हाँ ना, कुछ बोल लो, कुछ बोल लो। RHS कॉन्ग्रुएंसी वेरी यूजफुल, बहुत इजी हो जाएंगे थिंग्स व्हेन यू नो दीस, ठीक है। अब बात करेंगे सिमिलैरिटी की, अब बात करेंगे सिमिलैरिटी की। कॉन्ग्रुएंसी हो गया, सिमिलैरिटी मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एट्रीब्यूट्स जो है प्रोपोर्शनल है। यस, एट्रीब्यूट्स जो है प्रोपोर्शनल है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। कॉन्ग्रुएंट means equal, exactly the same. Yes, similar means what, proportional.
समझ में आ रहा है ये? कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? इक्वल। सिमिलर मतलब क्या? प्रोपोर्शनल। ये बहुत जरूरी है समझना, कहीं अगर आप सिमिलैरिटी के बदले कॉन्ग्रुएंट लगा दिए तो गलती हो जाएगी, राइट? कॉन्ग्रुएंट के बदले सिमिलर लगा दिए कोई टेंशन नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी के बदले अगर सिमिलैरिटी लगा लिया कोई टेंशन नहीं है, बट सिमिलैरिटी के बदले कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगा। डन है ना? चलो अभी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सिमिलैरिटी इज। So if I say that these are two triangles, triangle ABC, triangle XYZ, equal है क्या? Triangle ABC is equal to triangle XYZ. True or false? जल्दी से बोलो guys, जल्दी से बोलो। ABC is equal to XYZ. True or false? फॉल्स। वाई? देखो देखने पे पता चल रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है, राइट? बट वी विल प्रूव दैट दे आर सिमिलर, दोनों प्रोपोर्शनल है, वो प्रूव करेंगे, ठीक है? फर्स्ट, द एंगल्स मस्ट बी ऑलवेज इक्वल। एंगल्स जो है इक्वल होंगे, राइट? अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा, बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, गामा विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है? तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स में प्रोपोर्शन नहीं आएंगे, एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है? बट व्हाट अबाउट साइड्स? साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होंगे। यस, तो अब आप कैसे कर सकते हो? यू कैन टेक साइड्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल। यस, अल्फा के ये साइड पे क्या है? ए बी। ओमेगा के ये साइड में क्या है? एक्स वाई। तो ए बी बाई एक्स वाई, समझ रहे हो? अल्फा के काउंटर क्लॉकवाइज में क्या है? ए बी। ओमेगा के काउंटर क्लॉकवाइज में क्या है? एक्स वाई। सेम वे अल्फा के क्लॉकवाइज में क्या है? बी सी। ओमेगा के क्लॉकवाइज क्या है? वाई जेड। यस, यू कैन टेक अल्फा के ऑपोजिट में क्या है? ए सी। ओमेगा के ऑपोजिट में क्या है? एक्स जेड। तो ये जो रेशियो है ए बी बाई एक्स वाई, बी सी बाई वाई जेड, ए सी बाई एक्स जेड विल ऑलवेज बी इक्वल। यस, तो साइड्स क्या होंगे? साइड्स विल बी proportional. Yes, that means their ratios must be equal. That's it. Hi Shiv, hello. Cool na? Understood? So the sign for similar, similarity का sign क्या है? ये similar. Yes, on the other hand congruency का क्या था? This and them being equal. This is congruency. Okay, no confusion ना यहाँ पे, समझ गए ना? Yes. First similarity जो है वो है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो ट्रिपल ए में अगर आप दो एंगल्स इक्वल है प्रूव कर देते हो, इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड द थर्ड वन ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल, है ना? तीसरा अपने आप इक्वल होना ही पड़ेगा, दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि उनका सम 180 होना चाहिए, है ना? लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अल्फा और ओमेगा इक्वल है, बीटा और लैम्डा इक्वल है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं एंड गामा एंड थीटा इक्वल हो जाएंगे, राइट? देन सो दीज इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड वंस विल ऑल्सो बी इक्वल। दो पैर अगर इक्वल हैं तो तीसरा जो है वो भी इक्वल होगा, अल्टीमेटली मेकिंग इट सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी बिकम सिमिलर टू एक्स वाई जेड। बुझे? हाय अभिषेक। यस, तो आपको तीनों एंगल्स इक्वल है प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर दो प्रूव कर लिए तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, and you know alpha is equal to omega, beta is equal to lambda, so this will be 180 minus omega plus lambda, which is the same as theta. तो ये अपने आप इक्वल होगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट इज ट्रिपल एस सिमिलैरिटी।
या ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। क्या हो गया यहाँ पे, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, ए बी और एक्स वाई का रेशियो विल बी द सेम एज बी सी एंड वाई जेड का रेशियो, विच विल बी द सेम एज ए सी एंड एक्स जेड का रेशियो। यस, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इक्वल भी हो सकते हैं। सो ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स, सॉरी ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, ऑल congruent triangles are similar। फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी में 1 हो जाएगा इनका रेशियो, राइट, द रेशियो बिकम्स इक्वल टू 1 इन कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कुल ये ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, तीनों इक्वल होते हैं। या नेक्स्ट SAS similarity, SAS side angle side, angles must be equal, sides must be proportional। yes, तो angle alpha and theta are equal, AB by XY is equal to BC by YZ, ultimately means what, दोनों similar हो गए। yes, two sides proportional, बीच का angles equal, टू साइड्स प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल्स इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज 4 मीटर्स एंड दिस इज 2 मीटर्स, अगर ये इसको मैं बोलूँ ये 8 मीटर्स है, देन दिस वन हैज टू बी व्हाट, 4 मीटर्स। यस, तभी ये सिमिलर होगा, नहीं तो ये सिमिलर नहीं होगा। अगर ये 4 नहीं है, लेट्स से ये 5 मीटर्स है, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1, यहाँ पे भी 2:1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 8 मीटर्स है तो दिस हैज टू बी 4 मीटर्स। गॉट इट? एंड लास्ट इज RHS सिमिलैरिटी, जस्ट लाइक कॉन्ग्रुएंसी, RHS में सिमिलैरिटी भी है। क्या है, राइट एंगल्स होने चाहिए। यस, राइट एंगल्स होने चाहिए, बेसिस जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए टू हाइपोटेन्यूज। जो बेस का रेशियो है AB बाई एक्स वाई शुड बी द सेम एज AC बाई एक्स जेड। आप इसको शफल भी कर सकते हो, इनको शफल भी कर सकते हो। यू कैन से AB बाई AC, AB बाई AC इज द सेम एज XY बाई एक्स जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली, और स्वैप कर दिया इन दोनों को, स्वैप। ठीक है ना, डन। तो तीनों कॉन्ग्रुएंसी, चारों कॉन्ग्रुएंसी, चारों सिमिलैरिटी कूल है या नहीं? एक बार सब हाँ बोल लो। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, SAS, ASA, ट्रिपल S, RHS। सिमिलैरिटी क्या है, AA या ट्रिपल A, जो भी। यस, फिर ट्रिपल S, SAS एंड RHS। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साक्षी। अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। दो साइड, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल आर प्रोपोर्शनल, देन द थर्ड वन विल ऑटोमेटिकली बिकम प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो क्वेश्चन ट्राई करो क्विक। ये रहा आपका फिगर।
इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये वाला पार्ट गलत है, हाँ, दिस पार्ट इज रॉन्ग। ये वाला सही है, ट्राई करो। Sakshi, Shreya, Shreyashi, all say A. बाकी Abhishek says A, very good. Very good, Pankaj. So what are they saying in the given figure? YZ is parallel to YZ dash, Y dash Z dash, है ना? These two are parallel. Yes, अगर ये दोनों parallel है तो ये क्या हो गया? Transversal है कि नहीं? हाईलाइट करके बताता हूँ. Yes, these two are parallel, lines and angles है. ये अगर parallel है तो ये क्या हो गया? Hypotenuse हो गया. Correct? That means this angle will be equal to this angle, this angle will be equal to this angle, correct? छोटा एंगल बड़ा एंगल याद है, स्मॉल एंगल बिग एंगल, छोटा एंगल बड़ा एंगल याद है ना? यस, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए. If I take triangle X Y Z and triangle X Y dash Z dash, तो इसमें क्या हो गया? एंगल X कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है एंगल X, तो इक्वल हो गए. एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Y डैश, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Z डैश. यस, व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ? Since these two angles are equal, this is also equal. ये क्या हो गया? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी. Yes, that means triangle XYZ is similar to triangle XY dash Z dash. Correct? Now property सुन लो. Guys, listen to the property. If in a triangle, in any kind of triangle, कोई भी triangle में अगर कोई भी एक बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, पैरेलल लाइन, यस, पैरेलल लाइन टू द बेस, पैरेलल लाइन टू द बेस अगर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. गॉट इट? So since they are similar, what do we know? कि इसका जो रेशियो है x y by x dash y dash should be the same as x z by x z dash, है ना? x z dash. तो x y क्या है? 2 + 3 5,
एक्स वाई डैश क्या है यहाँ तक सिर्फ 2, 5/2 इज इक्वल टू एक्स जेड इज 6 यूनिट्स, ये पूरा 6 यूनिट्स है, तो दिस इज 6/xz dash. Ultimately xz dash is what? 12/5, which is 2.4 units. समझ गए एवरीबडी? मनीष क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, xz dash है, डैश xz dash है, नॉट xz, ठीक है? कुल ना समझ गए ना? ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखोगे तो आपको टाइम कम वेस्ट होगा. यूज दिस प्रॉपर्टी टू नॉट वेस्ट टाइम व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सिमिलर क्वेश्चन. चलो ये ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ लो, आई विल ड्रॉ द डायग्राम. क्वेश्चन पढ़ो, आई विल ड्रॉ द डायग्राम. ध्यान से सोचो और करो, कोई अर्जेंट नहीं है ना, देयर इज नो रश, आराम से सोच के करो. Mukul says B 1:2. Others? Alindekan says B. Okay, superb. Others? Anshu. So much better. Superb, Anshu. So अब तक मुकुल एंड अंशु हैव सेड आंसर बी. बाकी लोग? पंकज सेज 1:√2. पंकज के हिसाब से आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ही सेज आंसर इज 1:√2. अभिषेक एंड श्रेयसी ऑल्सो से बी. ओके, okay, so let's look at this question.
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसका एरिया लेट्स से दिस इज एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3, है ना. एरिया ऑफ एक्स पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू क्यू डैश पी डैश एरिया ऑफ पी डैश क्यू डैश जेड वाई. यस, एरिया 1 is equal to area 2 is equal to area 3. Triangle XPQ का एरिया, ट्रायंगल XPQ का एरिया 1 है ना. एरिया XPQ का 1 है. एरिया ऑफ ट्रायंगल XP डैश Q डैश क्या है? 1 and 2 together, 1 and 2 together, which is basically 2 times area of triangle XPQ. Correct? ये आया समझ में? Similarly, एरिया कौन से ट्रायंगल का भी? XYZ बड़ा, XYZ का क्या है? 1 + 2 + 3. Yes, 1 + 2 + 3, which is basically 3 times the area of triangle XPQ. समझ रहे हो ये? Yes. तो अभी सिर्फ अपने को क्या चाहिए? अपने को सिर्फ ये रेशियो चाहिए, D/D डैश का रेशियो चाहिए, है ना. तो ये वाला इक्वेशन लो, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल XP डैश Q डैश. एक काम करेंगे, वी विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर. यस, अपन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. हटो, लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर. यस, ये H है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. ये H है और ये दिस एंटायर थिंग यहां से यहां तक H डैश है. यस, यहां से यहां क्या है? H डैश. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल XP डैश Q डैश क्या है? हाफ टाइम्स बेस क्या है इसका? बेस D, हाइट क्या है? H. यस, और यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल XPQ, sorry, this is half times D dash times H dash. ये क्या होगा? हाफ टाइम्स D टाइम्स H. यस, तो अब अपन क्या बोल रहे हैं? इनका रेशियो क्या है? 2 टाइम्स है, राइट. देयर रेशियो इज व्हाट? 2 टाइम्स. दैट इज हाफ D dash H dash is equal to 2 times half D into H. करेक्ट. दो 2 टाइम्स है ना एरिया, तो ये कैंसल हो गया. व्हाट डू यू गेट? यू गेट D dash H dash, नहीं उल्टा चाहिए अपने को, D/D dash चाहिए, है ना. तो D into H by D dash H dash कितना होगा? 1/2. यस, अपने को पता है, हमें पता है, वी नो दैट वॉट एवर रेशियो इज मल्टीप्लाइड टू D. यस, व्हाट डू वी नो? वी नो दैट, लिसन टू दिस केयरफुली, वी नो दैट D/D dash will be the same as H/H dash. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है. ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर है? पैरेलल लाइंस. यस, पैरेलल लाइंस टू द बेस. बेस के पैरेलल में लाइंस बनाए, मतलब वो एंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, है ना. यस, तो D/D dash इज द सेम एज H/H dash. तो H/H dash भी D/D dash हो जाएगा, अल्टीमेटली गिविंग अस व्हाट? D² dash square. Yes, yeah, D/D dash the whole square is 1/2.
finally giving us what? That d by d dash is equal to 1 by root 2. Yes, तो 1 by 2 जो बोल रहे थे, 1 by 2 is if you consider only one side, क्योंकि हाइट भी है और बेस भी है ना, बेस भी है और हाइट भी है, तो 1 by 2 नहीं होगा, 1 by root 2 होगा. So this is out, this is out, this is definitely out. What is our answer? Option D, none of the above, and the ratio is what? 1:root 2. समझ रहे हो? Any doubts guys? Anybody? किसी को कोई भी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? 1:root 2. तो जिन्होंने भी 1:root 2 बोला है, रोहित वेरी गुड, पंकज वेरी गुड, सुपर, योर आंसर्स आर राइट. एवरीबडी एल्स प्लीज चेक. ठीक है, हाँ बोलो श्रेयश्री. रूट 2 वाला पार्ट नहीं आया समझ में? सी व्हाट हैपेंस हियर इज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, यस, इफ आई से दैट triangle ABC is congruent to triangle PQR, then area of triangle ABC is the same as area of triangle PQR. ये हो गया congruency में, है ना? Yes. अब बात करते हैं similarity में. If I say triangle ABC is similar to triangle PQR, yes, similarity, then जो रेशियो आपके साइड्स का बन रहा है, राइट, जो रेशियो आपका साइड्स का बन रहा है, लेट्स से इफ आई से दैट AB by PQ, yes, AB by PQ is x is to y, AB by PQ is x is to y, right? या आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle PQR will be equal to स्क्वायर ऑफ AB by PQ का रेशियो. यहां पे क्या है, हियर इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू AB by PQ होल स्क्वायर. बट यहां पे AB और PQ सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट, बट AB इज इक्वल टू PQ, अल्टीमेटली गिविंग अस व्हाट, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज व्हाट, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर, गिविंग अस 1. क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे कुछ तो रेशियो आएगा, है ना, 1:2, 1:3, 3:1, 1:4, 2:3, जो भी रेशियो आएगा उस पर स्क्वायर होगा. अब आ रहा है समझ में आपको? ये वाला पार्ट आया क्या समझ में? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? अरे यार ये क्या हो गया, हाउ डू आई गाइस, ये आया क्या भी समझ में आपको? अरे यार हाँ हो गया. Now did you get it? Yes. So under similarity, AB by PQ square is equal to
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना, करेक्ट। तो AB बाई PQ क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ AB एंड PQ विल बिकम व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। या तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में है ये क्या बोला गया था कि दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, so root 1/2 is basically 1:√, got it। चलो, so we've learned what, area का, we've learned area का ratio, okay, try this quickly। ये रहा डायग्राम, sorry, here's the entire diagram। जल्दी से करो, ट्राई है। कर रहे हो ना ट्राई आप लोग? श्रेयसी, श्रेया, साक्षी, पंकज से B 90 degrees। हाउ अबाउट अदर्स? बाकी लोग? Anyone else? So what's going on here? YZ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जहां से A इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। यस, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड दिस एंगल BDZ। ये एंगल कितना है? यस, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि if this is equal to this, this is equal to this, दो sides equal हो गए। yes, now all you have to do is what, get the common side। तो if you take triangle, बड़े वाले triangles ले लो, AYB and triangles AZB। yes, AYB और AZB लिया आपने, क्या पता चला यहाँ पे कि AY is equal to AZ, BY is equal to BZ and AB is the common side। yes,
तो दिस इज ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आपने क्या प्रूव कर दिया? ट्रायंगल AYB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AZB, करेक्ट? आफ्टर प्रूविंग दिस, ये प्रूव करने के बाद क्या हो गया? अभी एंगल्स इक्वल हो गए, राइट? दिस एंगल becomes equal to this angle, yes or no? and ये equal हो गया इसके, this angle is equal, this angle, this will become equal to this and this will become equal to this, ये जो है ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? That being said, अब इसको अपने को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों भी, these two are also congruent, राइट? ये दोनों भी अगर congruent हो गए तो दोनों एंगल इक्वल, टोटल 180 है इसका टोटल 180। अब इन दोनों को, ये दोनों congruent है, प्रूव करना है, that's it। So how will you prove that these two are congruent? कौन से? ट्रायंगल AYD एंड ट्रायंगल BYD या BDZ, जो भी, कोई भी, राइट? एक बार कॉन्ग्रुएंट है उसके बाद कोई टेंशन नहीं। यस, हाउ विल यू प्रूव एनीथिंग हियर? यहां पे क्या हो गया? सिंस दिस इज इक्विडिस्टेंट, राइट? ये A जो है वो Y से भी इक्विडिस्टेंस है, Z से भी इक्विडिस्टेंस है। अल्टीमेटली YD क्या हो जाता है? YD becomes perpendicular bisector, है ना? YD क्या हो गया? perpendicular bisector। अगर YD perpendicular bisector हो गया तो एंगल क्या होगा? 90। This is 90, this is 90। रुको भाई, रुकिए जनाब, एंड दिस इज 90, चारों 90 होगा, 90, 90, 90 and 90, ultimately giving us what? Angle BDZ is equal to 90। yes guys, बिना प्रूव किए, without proving, don't say it looks like 90। yes guys, looks like, जो ये टर्म है ना, लुक्स लाइक, दिस इज पॉइजन इन ज्योमेट्री। यस, लुक्स लाइक जो है जहर है, पॉइजन है ज्योमेट्री के लिए। अब लुक्स लाइक के भरोसे कुछ भी अगर छोड़ दोगे ना तो सब कुछ जैसा लगेगा। यस, तो डू नॉट यूज लुक्स लाइक, सर ये तो 90 लग रहा है, नहीं, ठीक है? चलो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वी विल डिस्कस टुमारो सेशन। यस, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई विल टेल यू व्हाट द टाइमिंग्स आर आज से। यस, फ्रॉम टुडे 3 PM to 5 PM I will be taking geometry. Yes, then 8 PM to 9 PM I'll be taking algebra, ठीक है? This is on YouTube। इनके अलावा मॉर्निंग 7 AM to 9 AM, AM PM नहीं, AM प्रैक्टिस सेशंस होंगे। कहाँ पे? स्पेशल पे, दैट इज फ्री सेशंस ओनली, बट सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम वहाँ पे। वी विल नॉट बी डूइंग थियोरी, प्रैक्टिस। यस, एडवांस्ड प्रैक्टिस, मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चन सब करें। व्हेन यू लॉग इन टू दिस, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सुराना लाइव। फ्री है क्लास, बट सिर्फ आते वक्त एंट्री में सुराना लाइव लगा देना, ठीक है? इज दिस प्लान cool with everybody?
ये आ गया ना समझ में? सुबह 7 to 9, 3 to 5, 8 to 9, क्योंकि अपने को सिलेबस खत्म करना है और फिर हार्डकोर प्रैक्टिस में घुसना है ना. वी स्टिल हैव नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ. नंबर सिस्टम बाकी है, मॉडर्न मैथ बाकी है ना. वो खत्म करके फिर हार्डकोर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करेंगे, राइट? डन गाइज. एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज इसमें किसी को? या सो आई विल सी यू गाइज टुडे एट 8 PM. आज 8 PM आ जाना. किसके लिए? फॉर योर फंक्शंस की क्लास 8 PM. एंड डोंट फॉरगेट 7th March को स्कॉलरशिप टेस्ट है. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सुराना लाइव व्हेन यू एंटर द टेस्ट. यू कैन ऑल्सो यूज द आस्क अ डाउट फीचर. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं और आप ये किसी को पूछ नहीं पाते हैं या आप पूछते हैं फिर बहुत डिले में आंसर आता है, व्हाट यू कैन डू इज टेक द सब्सक्रिप्शन, प्लस ले लो या आइकॉनिक ले लो, एंड देन यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस तो होते ही हैं, बट आप यहाँ पे भी कर सकते हो. आस्क अ डाउट फीचर होगा, क्लिक करो, या तो सेलेक्ट अ पिक्चर और चूज फ्रॉम द गैलरी, हाईलाइट, mention something about it, and you will get the solution for it. Yes, so to get any of this, all you'll have to do is take the subscription. You can take the 12-month or the 24-month package. Use my referral code Surana Live, get 10% discount. Or if you want to go for Iconic, where you get a personal mentor helping you every step of the way, personalized test results and analysis with reports, राइट? आपका अप डाउन पूरा कर्व बताएगा. देन यू विल हैव योर स्टैंड अलोन ओमेट्स का प्रिपरेशन, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, एंड यू विल गेट फुल गाइडेंस, राइट? फुल गाइडेंस फ्रॉम whom? फ्रॉम alumni from IIM Bangalore, Ahmedabad, Calcutta and so on, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आइकॉनिक लेना पड़ेगा. आइकॉनिक के प्राइजेस हैं हियर. दिस इज फॉर 12 months एंड 24 months. 2 पैकेज है इसमें. यू कैन यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइव. प्राइजेस इमीडिएटली 10% से स्लैश हो जाएंगे. यस, ये 10% इज ओनली फॉर सम टाइम. इसके बाद ये 5% हो जाएगा. बिफोर इट बिकम्स 5%, गो अहेड एंड टेक दिस. यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइव. बस अबाउट 2,000 to 3,000 रुपीज़ पर मंथ में आपका कैट हो जाएगा क्रैक, एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो, एंड देयर इज नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल. या थैंक यू very much for being a part of this session, guys. I'll see you all tonight at 8 PM. Until then, keep yourself safe and happy. Keep learning and let's crack it.